Good morning, ma'am. Good morning, Pavni. Morning, ma'am. Good Good morning. morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning. Good morning. But Nischal is in our class. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Do we have any Nischal in our class? Good morning, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ये 8th का बच्चा आ गया 9th का सॉरी गुड मॉर्निंग बेटा Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग Ma'am, which book? Good morning, ma'am. Kartikeya with such a heavy heart you are asking me ma'am which book Yes, ma'am. He did not Ma'am, want to 3 study are at the there. study. Yes, I wanted to do flowcharts with you, but the problem is that my PC is running out of battery and there is no अरे charger मजा आ गया board. So अरे purpose मैम बढ़िया है बढ़िया है. Then you get out of my Yes, class. ma'am. What is the use of remaining in the class then? है? तो मैम कर कैसे सकते हैं मैम जब बैटरी नहीं है तो नहीं तो वो तो हम चार्जिंग पे लगा दिया फैन. जाओ जाओ मैम को चार्जर दे के आओ. ओह कह रहे हैं कि बोर्ड के पास कोई चार्जिंग वो पॉइंट नहीं है. बोर्ड के पास क्लोज लगा के I would have done the flow charts with you. Ma'am, Yes, Dhananjay. and this is the ma'am, last you can period. dictate. हाँ जी बेटा आखिरी का क्लास है ये आखिरी. Okay, ma'am. तो मैम एक पीरियड नहीं लगा करेगा. Thank you, ma'am. Ma'am, I think 8 period नहीं only 7 periods Ma'am. we will have. Yes beta please ask. you can dictate. What the flow chart? फ्लो चार्ट डिक्टेट Yes, for you ma'am. होता है Yes, ma'am. बेटा मैं सोच रही हूँ ना हम ये सोच रहे हैं कि instead of doing flow chart right now in the class हम वो रीडिंग पार्ट कर लेते हैं Atlas. जो एक्सप्लेनेशन वाला बिल्कुल मैम सही लैपटॉप सोच रहे में हैं ड्रॉ कर लीजिए हाँ नोटपैड में ड्रॉ कर लीजिए बेटा चक्कर क्या है ना वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है बच्चे प्रोसेस नोटपैड में इसमें क्या? कैसे आ जाएगा इसमें नोटपैड आ जाएगा क्या मैम रीडिंग ही सही है. मैम आप पढ़ा दीजिए मैम रीडिंग से मैम पढ़ा दीजिए मैम आराम से सुनते Yes, ma'am. रहिए everyone अच्छा बेटा as the 3 sections are here let me know in 10th A civics में federalism is complete Yes, almost ma'am. Yes, Almost, ma'am. ma'am. Only ma'am Yes, ma'am. 1.5 pages left. okay Yes, ma'am. then in 10th B federalism how much we have done I'm almost complete. almost complete. decentralization we were doing no Yes, ma'am. okay with 10th C you tell me where we have landed in this federalism wala thing मैम नॉट स्टार्टेड. Yes, ma'am. serious Oh, मैम Yes, इतने ma'am. We have पीछे not started. Yes, ma'am. मुझे बेटा यही लग रहा मैम था civics की क्लास लगती ही नहीं है मैम हिंदी को छोड़ के सब में आ गए हैं ये नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सब लोग किसी किसी ना चीज पे पीछे रह जाते हैं Ma'am, प्रॉब्लम will we not do geography? यस पावनी Will we not do geography right now? we'll not do geography right now what I am thinking is tell me in history in all the 3 classes where I have like till which page we have completed in history मैम डोंट नो anybody in class in the Ma'am, all what about Shagun sir? but I don't know now again I have to take history with you people maybe there are some health Ma'am, issues Thank you, ma'am. long back. huh? History we did long back, so don't remember. What I Ma'am, remember we have done till page 21. the last class that we had of history I think I completed till we because I think we had a combined class and I think I completed till that British nation wala strange case of Britain and then allegories also we have done Ma'am, can you tell the page number? page number Ma'am, I don't think we have done the strange case of Britain. we have done Ma'am, I don't think so. We have done. Ma'am, we have done till Italy unified. अरे बाबा रे ये भी Yes, ma'am.
But with 2 sections, I remember I have done this up till allegories wala thing I have completed. मैम in 10th B मैम have A done and B में करवाया A होगा। और B में शायद हो गया, चलो ठीक है, कोई नहीं, we'll catch up, no issues. ये combined class नहीं होगी तो that day we'll be doing it separately. Otherwise combined classes में it becomes little difficult, you know, क्योंकि Yes मैम मैम, civics ही कर ले। इक्वली चलना पड़ता है। पेज बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए कोई नहीं, हम सिविक्स करते हैं मैम, फेडरलिज्म। तो हम ऐसा करते हैं, हम सिविक्स में फेडरलिज्म शुरू करते हैं एंड दी दैट Yes, स्टूडेंट्स ma'am. ऑफ 10th A and 10th B विल बी एक्सप्लेनिंग फेडरलिज्म। ठीक है, आई विल नो कॉल मैम, वन। हाँ Okay मैम। ठीक है, मैम फाइन। डबल रिवीजन हो जाएगा। 10C to have the books with them, 10th A, B, C, all the 3 sections. Keep your civics books with you. Okay, ma'am. Right? Okay. We have Excuse me. Aksada. हाँ बेटा सृष्टि। Ma'am, actually Ananya is in the waiting room. Can you just let her in? अच्छा बेटा, 1 मिनट। मैम सुहाली and Ramsha also are in the waiting room. कुछ तो दिखा नहीं रहा है ये बेटा, वेटिंग रूम तो नहीं दिखा रहा है ये। मैम 2 मिनट वेट किया होगा फिर चले गए होंगे। नहीं 1 मिनट, ऐसे नहीं क्या बेटा, 1 मिनट। हाँ अरे बहुत बच्चे बैठे हैं, रुको। ओके, आई हैव टेकन एवरीबॉडी इन। चलो, we'll have Aksada telling us what is federalism. Aksada? Yes मैम। हाँ, what is federalism बेटा बता दो। Whatever you have understood, do not hesitate and do not feel bad also if you have not understood. But whatever. Ma'am, it is a system of government in which the power is divided हाँ, it is a system of between the authority and मैम sharing various of power constituent units. called federal Okay, it is sharing of. It is sharing of. मैम शेयरिंग ऑफ पावर among different Ma'am, levels sharing and of- organs of government. Very good. Now, when we say India is a federal country, what exactly we mean by that? Shared amongst all at the levels of government. Among different organs and of government. Ma'am, Yes, beta. ma'am, India is not full ma'am federalism country. Ma'am, quasi-federal is following in India. What India is? Ma'am, quasi-federal country. हाँ, कोसी फेडरल है इंडिया। That only, na ma'am. हाँ, इंडिया इज अ कोसी फेडरल। पर जितने भी फेडरलिज्म की जो फीचर्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो हम सब करते हैं हमारे कंट्री में। लेट मी पुट द एयरफोन्स, आई एम नॉट एबल टू। हाँ जी बेटा, कैन यू ऑल हियर मी नाउ? yes ma'am ma'am Yes, but ma'am. Yes ma'am, but your voice is हाँ, कैन यू हियर मी? yes ma'am but your voice is quite माय वॉइस इज क्वाइट व्हाट? Low. ma'am low नाउ? नाउ ma'am now little bit अब ठीक है? yes ma'am अब ठीक है बेटा? Yes, ma'am.
ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, चलिए हम एक मोटा मोटा एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज फेडरलिज्म, व्हाट एग्जैक्टली डू वी हैव इन दिस चैप्टर, राइट? Okay, ma'am. हाँ, देखो बेटा, फेडरलिज्म, व्हेन वी से फेडरलिज्म, इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट अथॉरिटीज। ठीक है, इतना तो हम सबको पता ही है। हमें ये पता है कि हमारे कंट्री में वी हैव टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आते हैं। इतना तो हमें पता है ना बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. तो वो कहता है कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड द स्टेट अथॉरिटीज, राइट? अब ये कहता है कि जो फेडरलिज्म है वो दो तरीके से प्रैक्टिस होती है। ठीक है, एक फेडरलिज्म वो होता है जिसमें कि केवल सेंट्रल अथॉरिटी होती है, और कहता है कि एक जो फेडरेशन होता है उसमें, सॉरी, वो कह रहा है कि एक जो फेडरलिज्म की जो प्रैक्टिस है उस वो दो तरीके से फॉलो होती है। एक में आपका यूनिटरी सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, और एक में हम फेडरल सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो फेडरल सिस्टम, व्हेन वी से फेडरल सिस्टम, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स, एंड व्हेन वी से यूनिटरी फॉर्म, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स एट ऑल। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर होगा सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फाइन। फिर ये कहता है कि जैसे जब हम फेडरेशन की बात करते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि भाई फेडरेशन क्या है, तो हम ये बता, जैसे हमने पढ़ा था कि बेल्जियम, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, Yes, ma'am. in that we have read that the government in that we have read that Belgium was a unitary government, but later on it switched to federal system, right? And Yes, ma'am. Yes, and ma'am. Yes, ma'am. Sri Lanka was a unitary form of government which where, you know, still they are practicing the unitary practices only. They have not switched because of the diversity, the problems that you know, were there in Sri Lanka. The government does not, like in Belgium, the government decided to switch from a unitary to a federal form of government. But in Sri Lanka, the authorities which were there, they did not take this decision of shifting from one to another. They were practicing the unitary system only. This much is clear, no? Yes, ma'am. Now they Yes, say, ma'am. yes, beta Parni. Ma'am. Okay. They say that Excuse the, me, ma'am. हाँ जी बेटा गार्गी बोलो बच्चे। Is the civil war still going on in Sri Lanka? नहीं बेटा, 2009 में it got over, 2009 में it got over। अब तो बहुत चीजें सही हो गई हैं वहाँ पे। Okay. हाँ, चलिए, वो कह रहा है कि अगर हम फेडरेशन की बात करते हैं, तो फेडरेशन में क्या होता है, वी हैव लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। उस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में एक गवर्नमेंट होती है इंटायर कंट्री के लिए, और एक गवर्नमेंट होती है पूरे स्टेट्स के लिए। ठीक है, तो जो इंटायर कंट्री होती है, गवर्नमेंट जो इंटायर कंट्री के लिए होती है, उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कुछ स्पेसिफिक कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स के लिए होती है। अगर आपको याद हो तो हमने आपको वो लिस्ट सिस्टम के बारे में बताया था, 3-fold लिस्ट सिस्टम ऑफ द कंट्री Yes, ma'am. ना। उसमें हमने Yes, आपको ये भी, हाँ, उसमें ये भी बताया था कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो सब्जेक्ट्स ऑन विच दे लेजिस्लेट, दे आर डिफरेंट। ये हमने क्लास में करा था ना। तो उसमें ये कह रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्योंकि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी होल कंट्री, फॉर द इंटायर कंट्री, तो उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंपैरेटिवली डिफरेंट है। ठीक है, और जो सब्जेक्ट्स उसके जुरिस्डिक्शन में आते हैं उन्हीं पे वो लॉज बनाती है। फिर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऑर्डर एज सच पास नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों सेपरेटली वर्क करते हैं। दो दे आर ऑन द सेम level, though they are on different levels, that because they are on different levels, that is why the central government cannot order the state government। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी jurisdiction होती है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी jurisdiction होती है, और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं होती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई काम कर रही है, या कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आ रही है, या किसी भी तरीके की चेंजेस ला रही है अपने स्टेट में इन द वर्किंग
in the agriculture this thing or with the XYZ any factor that they want to work upon, तो वो उनका jurisdiction अपना ही होता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए को वो आंसरेबल नहीं होते हैं कि भाई हर छोटी छोटी देर के लिए, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, मम्मा मैं ये कर लूं, मम्मा मैं वो कर लूं, ऐसा नहीं होता है स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। बट हाँ, कुछ एक मैटर्स में जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी या एजुकेशन आती है, या आपका भाई जहाँ पे पूरे कंट्री की भलाई के बारे में जब हम कोई बात करते हैं, तो इन दैट केस जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सर्टेन इंस्ट्रक्शंस दे कैन पास ऑन टू द स्टेट गवर्नमेंट, और उसको कैसे फॉलो करना है दैट इज कंप्लीटली अप टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे मम्मा बच्चों से कह के जाती है, जैसे मम्मा बच्चों से कह के जाती है बेटा जो है आप हमने खाना बना दिया है, खाना खा लीजिएगा और अपनी अपनी पढ़ाई कर लीजिएगा। अब मदर डज नॉट नो कि आपको क्या पढ़ना है, बट बिकॉज शी इज कंसर्न अबाउट योर स्टडीज, तो शी इंस्ट्रक्ट्स यू कि आप अपनी अपनी पढ़ाई कर लीजिएगा। वो स्पेसिफाई नहीं करती है कि आपको पढ़ाई में क्या करना है एग्जैक्टली। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो भी एग्जैक्टली इसी तरीके से काम करती है, वो गाइडलाइंस तो भेज देती है और स्टेट गवर्नमेंट अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है उन गाइडलाइंस पे काम करती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। अब आप आ जाओ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। ठीक है, और जितने भी जो सब यूनिट्स होते हैं वो सब उसके सबऑर्डिनेट होते हैं, वो उसके अंडर काम करने वाले होते हैं। ठीक है, उनका कोई अपने में अपने आप में उनका कोई अस्तित्व या कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। ठीक है, राइट क्लास? यस मैम। यस मैम। Yes, अब ये जो सबऑर्डिनेट यूनिट्स होती हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट या द सब यूनिट्स व्हिच आर देयर। ठीक है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो सब यूनिट्स होती हैं, दे आर कंप्लीटली आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि भाई लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक ही है, तो जो भी काम हो रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं, वो अंडर सर्टेन गाइडलाइंस हो रही हैं, और उन गाइडलाइंस को जो फॉलो कर रहा है दे आर आंसरेबल टू द मेन अथॉरिटी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। अब जब हम फेडरलिज्म के फीचर्स की बात करते हैं, भाई देयर आर सेवरल फीचर्स दैट फेडरलिज्म हैज। क्यों फेडरलिज्म को हम प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा क्या उसमें खासियत है कि हमारे कंट्री में हम फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं? भाई अमेरिका में भी तो, अमेरिका जो है, अमेरिका का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है, पर है तो वो भी डेमोक्रेसी, हम भी डेमोक्रेसी। ऐसा क्या है कि अमेरिका में वो डिफरेंटली वर्क करता है, हमारे कंट्री वो डिफरेंटली वर्क करता है? तो पहले हम आपको बताएंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद हम आएंगे कि जो फेडरेशन को फॉलो करने के जो दो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो कमिंग टू दी फीचर्स, इसका सबसे पहला फीचर ये कहता है कि देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये तो इसमें डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस टू यू पीपल? यस मैम। We all Ma'am, know please that there in the first feature of federalism says that there are 2 or more levels of government. हमें पता है कि इंडिया में बिफोर आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड एंड एनफोर्स्ड, ड्यूरिंग दैट टाइम द पीपल द कॉन्स्टिट्यूशन, द कंट्री वाज फॉलोइंग ओनली 2 टायर्स ऑफ सिस्टम गवर्नमेंट। पहला आपका सेंट्रल, दूसरा आपका स्टेट गवर्नमेंट। बट धीरे धीरे जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी, जब आपके जो है स्टेट्स बढ़ने लगे, तो ये फाइनली डिसाइड हुआ कि भाई विद इन द स्टेट गवर्नमेंट एक लोकल गवर्नमेंट भी जो है वो भी होगी, जो कि स्टेट लेवल पे स्टेट की अथॉरिटीज को हेल्प करेगी इन बेटर गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इनिशियली अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखो तो स्पेसिफिकेशन केवल 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बट वी हैव लोकल गवर्नमेंट एज वेल, जिसकी एग्जिस्टेंस, जिसकी जो व्हाट डू यू कॉल एग्जिस्टेंस जो थी, जिसकी एग्जिस्टेंस बाद में आई थी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यस मैम। अब कहता है डिफरेंट, हाँ, सेकंड पॉइंट सेज different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction. अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये जो 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, ये अपने अपने तरीके से, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो हम ही को गवर्न करती है ना, और स्टेट गवर्नमेंट भी हम ही लोगों को गवर्न करती है ना? यस मैम। यस मैम। हम लोग जो है, हम लोग जो भी हमारी फैसिलिटीज या जो भी चीजें हमें मिलती हैं,
वो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें ऑथराइज करती है और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू वो हमें मिलती है, ठीक है। तो जो भी ये जो दोनों गवर्नमेंट है, ये दोनों डिफरेंट लेवल्स पे काम करते हुए सेम ही सिटीजन्स को गवर्न करती हैं, बट दोनों का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। जैसे एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में एक ये डिसाइड हुआ, भाई एजुकेशन पॉलिसी आई जिसमें कि ये कहा गया अंडर द फंडामेंटल राइट कि राइट टू एजुकेशन सबको होगा। अब ये राइट टू एजुकेशन सबको होगा, ये डायरेक्शंस दे दी गई। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं, इन सब ने इसको फॉलो करा। अब हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने तरीके से इसको फॉलो करा। भाई उन जो एरियाज थे, जिस तरीके से जो भी रीजन्स थे या जो भी उनके कंडीशंस थी स्टेट की, उन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए जो है इन चीजों को फॉलो करा गया। नए स्कूल्स बनाए गए, बच्चों को इंश्योर करा गया कि भाई बच्चे आर इनरोल्ड इन द स्कूल, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको बताता है कि हम सब लोग एक कंट्री का पार्ट हैं, बट क्योंकि हम स्टेट्स में डिवाइडेड हैं, कोई यूपी में रह रहा है, कोई गुजरात में रह रहा है, कोई पंजाब में रह रहा है, कोई हरियाणा में रह रहा है, कोई असम में रह रहा है, कोई जो है आपका अरुणाचल में रह रहा है, कोई आपका तमिलनाडु में रह रहा है, तो सिटीजन तो हम इंडिया के ही कहलाते हैं। कोई हम ये थोड़ी कहते हैं वी आर सिटीजन ऑफ तमिलनाडु। डू वी से दैट? डू वी से दैट क्लास? Am I not audible, children? Ma'am, now you are audible. अरे कनेक्शन अनस्टेबल हो रहा है मेरे ख्याल से। चलो कोई नहीं। Yes, ma'am. हम ये कह रहे हैं कि हम ये कभी नहीं कहते हैं, जैसे वो आपने चक दे मूवी देखी है, बच्चों ने देखी होगी, मूवी काफी अच्छी थी ये। Yes, ma'am. Yes. तो उसमें Yes, when ma'am. शाहरुख खान asks every girl that अपना इंट्रोडक्शन दो, तो एवरीबडी सेज पंजाब की ये, पंजाब, फिर हरियाणा की वो, कहीं और की ये, कहीं और का वो। तो he does not allows these girls until they say टीम इंडिया, राइट? Yes, ma'am. तो एग्जैक्टली यही चीज वो कह रहा है कि भाई सिटीजन्स तो हम एक ही कंट्री के हैं, ठीक है, बट क्योंकि हम अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, तो हमारा जो गवर्नेंस है, वो हमारा जो ज्यूरिसडिक्शन होगा, अगर हम यूपी में रह रहे हैं तो यूपी में की जो भी लॉज हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, उसको हम वी आर बाउंड टू फॉलो दैट, ठीक है। गुजरात के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इफ वी आर लिविंग इन गुजरात, वी बीइंग द सिटीजन, बीइंग part of that state, we need to follow the rules and regulations of that particular state. तो वो कह रहा है कि कंट्री के लोग तो हम इंडिया के ही हैं, बट क्योंकि हम अलग अलग राज्यों में बटे हुए हैं, इसलिए जो हमारा ज्यूरिसडिक्शन है वो हमारे स्टेट की अथॉरिटीज है। इतना क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक। Yes, ma'am. Coming to the third point, कह रहा है jurisdictions of the respective level of government are specified in the constitution। कह रहा है हमारे भारतीय संविधान में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बहुत क्लियरली बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से रूल करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से रूल करेगी। दोनों की जो जुरिस्डिक्शन है, दोनों की जो पावर्स है, उनको बहुत क्लियरली डिफाइन करा गया है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप दिस इज क्लियर। Yes, ma'am. ठीक है, shall I proceed? Yes, ma'am. अब अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, फीचर की बात Yes, करते ma'am. हैं, कह रहा है द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कह रहा है किसी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल प्रोविजंस जो हैं हमारे, उनमें बिना स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के कॉन्स्टिट्यूशन में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। अनलेस एंड अनटिल स्टेट गवर्नमेंट अग्रीज, तभी फंडामेंटल प्रोविजंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनमें चेंजेस आएंगे। बिना स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के, उनकी रजामंदी के, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रोविजंस में हम कोई चेंज नहीं ला सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? Is Gargi saying something? Ma'am, actually your Ma'am, you are voice not audible. Ma'am, you are not audible. Beta, the problem is the net is today disturbing a lot. What to do?
What should I do? Tell me, because net again and again it is showing unstable network. Now am I audible? बेटा अब आ रही है आवाज? Yes, ma'am. ma'am. Now Yes, it's ma'am. अच्छा, वो ये कह रहा है कि जो फंडामेंटल प्रोविजन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती है, जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी जो है अग्री नहीं करती है स्टेट गवर्नमेंट की भाई हाँ वी आल्सो वांट चेंजेस, तब तक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले अपने दम पर जो है कोई चेंज नहीं ला सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रोविजंस में। ठीक है, जैसे एजुकेशन पॉलिसी जब आई नहीं तो उसमें पहले परमिशन मांगी गई भाई हम इसको फंडामेंटल एक वो बनाने जा रहे हैं, तो क्या करें कि नहीं करें। तो ये तो क्योंकि इंक्लूड करना था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, एक बिल पास करा और फिर उसको वो पास हो गया और ये लॉ बना दिया कि भाई राइट टू एजुकेशन जो है सबका अधिकार जो है शिक्षा की तरफ समानता से होना चाहिए, ये बन गया। ठीक है, अब आर्टिकल 370 की अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल 370 सबको पता है क्या था? yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, जब आर्टिकल 370 को एबॉलिश करने की बात आई, क्योंकि ये फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन था तब, हाँ ठीक है, तो ये हुआ कि भाई everybody needs to give their concern for abolishing this 370. Fine class? Yes. Okay. Now moving to the fifth feature. Yes beta, बोलो नैना। बेटा समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो नैना? Yes, ma'am. अब वो कह रहा है कि जो हमारे कंट्री की जो कोर्ट्स हैं, दे हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कह रहा है कि जो हमारे कंट्री के कोर्ट्स हैं, आपका लोअर से लेके ऊपर जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हमारे कंट्री की, तो कह रहा है जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है, दे हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर, they have the power to give directions to the state government and the central government to work in accordance to the given provisions in the constitution. सेंट्रल गवर्नमेंट अगर, जैसे हमने एक बार आपको एग्जांपल दिया था व्हेन यू पीपल वर इन क्लास 9 कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये डिसीजन था कि भाई डीमोनेटाइजेशन करा जाएगा, पर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने केसेस फाइल करे, पीआईएल जो है, बहुत सारी पीआईएल जो है सुप्रीम कोर्ट में आई, तो जिसके अंडर जो है सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा कि भाई आपने जो डीमोनेटाइजेशन करा उसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या रहा, whatever motive you decided to go for that demonetization, were you able to achieve that target with which you had set this? So thus now when Supreme Court raises any question against the governance of the government, in that case the central government has to give answer. They cannot say no to Supreme Court for not answering. ठीक है? Okay, ma'am. हाँ. Now coming to the different next feature, the sources of the revenue of for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, इनके अपने अपने रेवेन्यू सिस्टम्स होते हैं, ये अपने तरीके से जो है टैक्सेस वसूलती है। ठीक है, सेंट्रल, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने रेवेन्यू के सोर्सेज हैं और स्टेट गवर्नमेंट के अपने रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, इनका अपना अपना जुरिस्डिक्शन होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट, जैसे स्टेट गवर्नमेंट में जिस मतलब जो भी रीजनल उसकी जो है रिचनेस होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने अपने टैक्सेस को इम्पोज करती है। ठीक है बेटा, भाई जैसे कुछ Yes. बेटा मैं क्या करूं, मेरे बच्चे can't help it. It's okay, ma'am. You can continue. Okay, I can understand, but see, I have no control over these nets and all, no. ठीक है, अच्छा, जैसे I was telling you this कि जैसे जो ये है कौन सा स्टेट है जहाँ पे टबैको बहुत ज्यादा होता है, which state is that?
मुझे Ma'am, state का repeat नाम नहीं again. याद आ रहा। State where the tobacco is produced, lot of tobacco is produced. Tamil Nadu. शायद, मुझे एग्जैक्टली याद, मेरे को बिल्कुल क्लिक नहीं कर रहा है बेटा। Ma'am, चलो, Madhya Pradesh. हमें नहीं पता, हमें अभी क्लिक नहीं कर रहा है एग्जैक्टली, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा है। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे जिस स्टेट में टबैको बहुत ज्यादा ग्रो होता है तो वो स्टेट टबैको पे टैक्सेस लगा सकता है, ठीक है, ठीक है। पर वो स्टेट जहां पे टबैको प्रोड्यूस ही नहीं होता है तो वो टबैको से रिलेटेड कोई टैक्स ले ही नहीं सकता है, ठीक है। Basically I am telling you, giving Yes, you this, ma'am. हाँ, giving you this example in context of the revenue part, no, कि भाई हर स्टेट का अपना रेवेन्यू का जुरिस्डिक्शन है, वो कहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, वो कितना कलेक्ट करेगा, ये कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन होता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट की जोग्राफिकल लोकेशन, भाई कोई स्टेट एग्रीकल्चर में बहुत प्लस पॉइंट होता है उसका, कुछ स्टेट्स का जो है स्पाइसेस में है, कुछ स्टेट्स का जो है आपका ये मिलेट्स और इन सब में है। तो according as per the geographical and the climatic conditions of the state, जो भी टैक्सेस वो इम्पोज करना चाहते हैं ऑन द ईटेबल्स एंड अदर थिंग्स, वो कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन उसमें होता है। आई होप इट इज क्लियर। Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. नाउ Ma'am, दे से Andhra दैट Pradesh. है बेटा, क्या कह रहे हैं? Ma'am, और कर्नाटक। ma'am has written Andhra Pradesh. हाँ तो ठीक है, हमने There क्या is- बोला, हमने बोला तो हमें ऐसे याद नहीं है कि स्टेट में टबैको बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, पर जहाँ पे भी होता है वहाँ की गवर्नमेंट जो है उस पर टैक्सेस इम्पोज कर सकती है। पर जिस स्टेट में टबैको होता ही नहीं है तो वो टबैको पे टैक्स कैसे लगा सकते हैं, है ना, सोचने वाली बात है ना। Okay, ma'am. हाँ, अब आप आ जाओ इसके फाइनल 7th फीचर पे। कह रहा है कि जो फेडरलिज्म की जो प्रैक्टिस होती है ये एक डुअल ऑब्जेक्टिव को जो है वो करती है, फुलफिल करती है। पहला तो ये होता है कि भाई ये सेफगार्ड करती है द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, और दूसरा कंट्री की यूनिटी को प्रमोट करती है। भाई जो भी प्रोविजंस होते हैं सबको बराबर मतलब देखा जाता है, किसी पे कोई चीज इम्पोज नहीं करी जाती है। कीपिंग इन माइंड गिविंग लिबर्टी टू द स्टेट गवर्नमेंट, हर तरीके की वो चीज करी जाती है जिससे कि एक आपस में जो है भाईचारा बना रहे, बिना किसी के इंटरेस्ट को ऑफेंड करे हुए, ठीक है। Okay, ma'am. Okay, ma'am. और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो होता है आपका रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने का। जो भी हमारे कंट्री की रीजनल डाइवर्सिटी है, फेडरलिज्म जब हम प्रैक्टिस करते हैं उससे हम जो है उस रीजनल डाइवर्सिटी को जो है अकोमोडेट करते हैं, ठीक है। जो भी प्रोविजंस हम लगाते हैं या जो भी हमारे कंट्री की जो भी पॉलिसीज रही हैं, जो भी लॉज हम लोगों ने इम्पोज करे हैं, या जिस भी तरीके से हम गवर्नेंस करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उन चीजों में हम ये उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये होता है कि क्योंकि हमारा कंट्री सेक्युलर कंट्री है, हमारे कंट्री की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, हमारे कंट्री में किसी भी ऑफिशियल रिलीजन, कोई भी रिलीजन को ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करा गया है कि भाई ये देश का रिलीजन है। क्योंकि हम सेक्युलर कंट्री हैं तो जो भी हमारे प्रोविजंस हैं वो इन चीजों को देखते हुए बनाए गए हैं कि जो भी डाइवर्सिटी है वो इजीली अकोमोडेट हो सके बिना किसी द्वेष भावना को पैदा करे हुए। भाई कई बार ऐसा होता है, श्रीलंका में हमने देखा कि जिस तरीके से सिन्हालास को प्रमोट किया जा रहा था हर चीज में, तो श्रीलंकन तमिल्स बड़े ऑफेंसिव फील करा उन्होंने, उन्हें लगा कि भाई ये तो हमारा भी देश है पर हमारे लिए कुछ है ही नहीं इसमें, तो हम कैसे इसको अपना देश कह लें, है ना। हम जिस घर में रहते हैं उस घर में हमें कुछ भी करने का अधिकार नहीं है, कुछ भी करने का, तो क्या वो आप उसको घर को अपना घर कह सकोगे? नहीं कह सकोगे, नहीं कह पाओगे ना, कह पाओगे क्या? Yes, ma'am. हाँ, तो कह रहा है कि भाई जो भी प्रोविजन करे जाते हैं इन प्रैक्टिसिंग फेडरलिज्म, उनमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि रीजनल डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट किया जाता है, लोगों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाता है, और यूनिटी को प्रमोट किया जाता है इन द कंट्री। These were all 7 features of the federalism. I hope all the features are clear and understood to each and every one of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो बेटा? Ma'am, jurisdiction. Jurisdiction मतलब बेटा अधिकार क्षेत्र बोलते हैं उसको, ठीक है? Okay, ma'am. ठीक है, Okay, ma'am. कोई चलो अब हम आते हैं आपका नेक्स्ट उसमें, रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म। कह रहा है कि दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं जिससे कि हम फेडरेशन को फॉलो करते हैं। एक होता है कमिंग टुगेदर, एक साथ आ जाना,
और एक होल्डिंग टुगेदर, एक साथ पकड़े रहना। तो हमारा जो कंट्री है ना वो एक साथ पकड़े हुए हैं सारे राज्यों को, तो ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन हो गया। ठीक है, ठीक है। Yes, और ma'am. जो Yeah, ma'am. अमेरिका, हाँ, जो अमेरिका है हमारा, अमेरिका इज अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अमेरिका जो है इतना बड़ा, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैसे बना है, अलग अलग छोटे छोटे देश जो हैं वो आके अमेरिका के साथ जुड़ गए हैं, तो उन्होंने जो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन को के रूट को फॉलो करा और एक बड़ा इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया, एक बड़ी बड़ी बिगर यूनिट बना दी। सारे स्टेट्स इंडिपेंडेंट हैं वहां पे। ठीक है, अगर आप देखो, अगर आपको अमेरिका के बारे में पता होगा तो अमेरिका में लॉज आर डिफरेंट फॉर एवरी कंट्री, सबका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, सबकी डिफरेंट जुडिशरी है, सब कुछ अलग अलग है वहां पे कुछ भी एक जैसा नहीं है। जैसे हमारे कंट्री की जब हम बात करते हैं तो वी ऑलवेज से दैट इन आवर कंट्री वी फॉलो वन कॉन्स्टिट्यूशन, कहते हैं ना हम लोग। Yes, ma'am. हाँ, बट अगर हम अमेरिका को देखें तो अमेरिका में एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हर कंट्री का डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन है। जो भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स आके अमेरिका के साथ जुड़ के उनको अमेरिका को एक बड़ा राज्य, बड़ा कंट्री बनाया है, तो उसमें उस केस में उन्होंने क्या करा है कि जो स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज हैं, इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो हैं, उनका अपना अपना जुरिस्डिक्शन लेवल है, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है किसी का भी एक दूसरे के अंदर। कैलिफोर्निया अलग है, टोरंटो अलग है, सब कुछ अलग अलग है, सबके उनके अपने कायदे कानून हैं, उनका अपना लॉज है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हो तो आपको उसी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं अमेरिका का पार्ट हूँ, मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ, तो मुझे जो है यही रूल्स में फॉलो करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे जिस जगह पे आप हो, आपको उस जगह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। इतना समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब अगर हम बात करते हैं कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर के पॉइंट की, डिफरेंस की, तो जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, इसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स दे कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। ठीक है, वेयरएज इन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन a large country decides to divide its power between the constituent states। जिन राज्यों ने मिलके उनको बनाया है, राज्यों का संघ है ना हमारा देश, जो है संघीय राष्ट्र है ना हमारा, हम कहते हैं ना भारत एक संघीय राष्ट्र है। Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. ठीक है, तो कहता है कि जो लार्ज कंट्री जो है डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर में वो ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं दे हैव ऑल इक्वल पावर्स, वेयरएज इन होल्डिंग टुगेदर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं, उनके पावर्स अनइक्वल होते हैं, इक्वल बिल्कुल नहीं होते हैं। और कमिंग टुगेदर फेडरेशन में जो स्टेट्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, वेयर एज सेंट्रल, आपका होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स होती हैं इन कंपैरिजन टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, Okay, Okay, ma'am. ma'am. आपकी बुक में एक पॉइंट ये भी लिखा है कि सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर, उसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल दिया है। ये एग्जाम्पल तभी तक के लिए लागू था जब तक 370 चल रहा था, पर जब से 370 हटा है तब से ये स्पेशल प्रोविजन वाला पार्ट हट गया है। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. So do not get confused when you are reading this. It will of course come because the books were printed long time Okay, back ma'am. and हाँ, ठीक है। चलिए Yes, ma'am. बेटा, this was all about the first 2 pages of the chapter. इससे ज्यादा अगर हम Ma'am. बताएंगे तो आप कंफ्यूज। हाँ बेटा अजीत बोलो बच्चे। मैम सिक्किम नागालैंड मैम हैविंग सम स्पेशल फीचर। हाँ सिक्किम, बेटा सिक्किम पहले हमारे साथ नहीं था, आपको पता है ये बात? सिक्किम हमारे कंट्री का पार्ट नहीं था, सिक्किम को बाद में जो है वो आके हमसे मिला है सिक्किम। ठीक है, मैम और 1961 नागालैंड, हाँ, और नागालैंड जो है, नागालैंड में भी क्या है कि भाई नागालैंड भी जो है दूसरे उसकी चाइना जाने